Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I am speaking Stella from the CA Sansar. So today we are going to talk about a very interesting topic and also the most important. The topic is why can bank concurrent audit be risky for the chartered accountant? And our guest is the CA Vivek Khurana sir. First of all, sir, thank you so much for joining us and also giving your valuable time. And in this topic, sir, we will also explain the ICI ने चार्टेड अकाउंटेंट पर 1 लाख ईच पेनल्टी लगाई है सर. सो प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू कि आप वंडरफुली और इजी वे पे एक्सप्लेन करिए ताकि सब समझ पाए. Now, before we further ado, I have a small request to all of you, those who are watching us, to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share, and comment. Now, sir, I would like to invite you to share your thoughts on the today topic. Thank you very much, Stella, and the team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some another important topic which are very close to my heart. And because now it's time for the bank branch statutory audit, and I was thinking earlier we'll start from the first week of March on the bank branch audit because we'll start from the April onwards bank branch audit. But one case which came into my knowledge recently regarding, as you said, regarding the ICI disciplinary case. And this case we will not discuss, as you said, ICI has imposed penalty of rupees 1 lakh each on two chartered accountant, and they are very, very, very famed chartered accountant. I am not going to disclose. You yourself can check it. But my purpose is to discuss about the why bank concurrent audit can be risky for the chartered accountant and what lesson we have learned from this ICI discipline case उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड देन क्या जो की lessons है for the chartered accountant even if you are doing some stock audit or the concurrent audit or the statutory audit because nowadays it's very very risky. It's not like that you can say that it's a formality. No, now it's a very very risky work. And you know, not only single, ये जो भी आईसीआई ने डिसाइड कर रहा है ये भी कोई सिंगल केस नहीं है विच आर अगेंस्ट द concurrent auditor. Many other cases has been decided and many other cases are pending. And even I know many chartered accountants who are the stock auditors जिनको ईडी ने कॉल कर लिया था कि हाउ यू डिड दिस स्टॉक ऑडिट. So you have to be careful while doing stock audit, while doing concurrent audit, while doing statutory audit. You have to, and I will tell you, इसमें मैं आपको डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, but yes, regarding the details कि what you have to check at the time of stock audit or what you have to check at the time of concurrent audit. But yes, इसमें से today I will guide you regarding what lesson we have learned from this concurrent audit case and why concurrent audits are risky for the chartered accountants. Statutory audit पे तो हमारे पूरे full fledged seminars, webinars, it will be there. वो पूरे complete चलेंगे. So regarding this disciplinary case, which are decided by the ICI disciplinary committee, उसमें two chartered accountants के ऊपर penalty लगाई है 1 lakh rupees each and reprimand. You know what's the meaning of reprimand? रिप्रीमेंट मीन्स आपको चेतावनी देना. तो रिप्रीमेंट इटसेल्फ इज गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. तो डोंट थिंक कि रिप्रीमेंट आपको सीधे माफ कर दिया. नो, यू विल बी गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ऑलवेज यू हैव टू राइट कि यस, disciplinary proceeding against me, I was the guilty for professional misconduct. That, remember that thing. So forget that case. But what we have learned, first thing, concurrent audit is not a formality. जैसे कई बार हमें लगता है कि यार concurrent audit में क्या है, अरे मैनी चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नोज, concurrent audit दिलवा दो, concurrent audit दिलवा दो. तो concurrent audit is not a formality. Means आपको monthly checklist नहीं करनी. You have to go for, it's a just like legal minefield. तो जो एक लीगल मीना फील्ड है आपको, इट्स डिफरेंट विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर.
स्टैच्यू ऑडिट में क्या करना पड़ता है? स्टैच्यू ऑडिट, जो बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट यू आर डूइंग, दैट मीन्स यू आर डूइंग द ऑडिट फॉर दैट ईयर, मीन्स जो ट्रांजेक्शन्स है विच हैपन्स ऑलरेडी, means you are doing the postmortem. But in concurrent audit, you people are doing in the real time. तो रियल टाइम में व्हाट बैंक वांट्स, या फिर जो कंकरेंट ऑडिट का पर्पस क्या था, व्हाट आरबीआई डिसाइडेड, मींस एज ए ऑडिटर, एज ए कंकरेंट ऑडिटर, you have to catch the irregularities when they happen and you have to stop कि कोई अगर उसमें मेजर फ्रॉड और समथिंग लाइक दैट, इन रियल टाइम बेसिस यू हैव टू डू द ऑडिट एंड स्टॉप द irregularity. If you don't do, then it's the gross negligence, then it can goes against you as a gross negligence. But you have to take care, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे you have to save yourself, because we are a chartered accountant. Now everybody thinks कि CA ने साइन कर दिया means 100% right, but yes, we have to take care while doing the concurrent audit. So first thing, never think that concurrent audit is just a formality. Then lesson number 2, वाई बैंक कंकरेंट ऑडिट होते हैं, तो उसमें क्या बैंक व्हाट दे वांट, बैंक वांट कि जो उन्होंने लोन दिया है, लोन अकाउंट, दैट्स ऑन द बिगेस्ट रिस्क. क्या होता है, मैनेजर्स तो लोन दे देते हैं कि ले लो लोन जी, पेपर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अरे मनी किसकी है? इट्स द कस्टमर मनी. बैंक कैसे लोन देता है? कोई अपनी पॉकेट से तो कस्टमर मैनेजर लोन नहीं दे रहा. इट्स ऑन द बेसिस ऑफ आप सेविंग में या करंट अकाउंट में आपके पास फंड्स है, उसी को आगे आप लोन दे रहे हो, तो दैट्स द इनकम, आप वहां से सेव कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो दैट्स द थिंग. तो लोन अकाउंट is the major responsibility of the auditors. Either you are doing the concurrent audit or doing the statutory bank audit. तो लोन्स के लिए इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियोस मैंने बनाए हैं. अगेन विल डू दैट, अगेन पूरा क्या क्या आपको चेक करना है, अगेन विल डू. बट टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू 10 लेसन विच वी हैव लर्न फ्रॉम दिस आईसीआई डिसिप्लिन केस, जो भी डिसाइड किया था आईसीआई ने. तो फर्स्ट थिंग, आपको लोन जो चेक करने हैं, तो मेन चीज, कोई भी लोन देखो, आप अगर कोई भी सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट अगर आप चेक करोगे, मेजर डिस्क्रिपेंसी विल बी देयर, मेजर डिस्क्रिपेंसी देयर. उसमें आपको मैक्सिमम डिस्क्रिपेंसी मिलेंगी आपको सीसी या ओडी अकाउंट में. तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू चेक इज द सैंक्शन लेटर. जो लोग चेक नहीं करते, सैंक्शन लेटर इज जस्ट लाइक योर बाइबल. एवरीथिंग मेंशन देयर इन द सैंक्शन लेटर कि आपको कैसे डिसबर्समेंट होगी, व्हाट वुड बी द एंड ड्यूज, हाउ यू हैव टू सबमिट द स्टॉक रिकॉर्ड, स्टॉक स्टेटमेंट, हाउ बैंक विल कैलकुलेट द डीपी, एवरीथिंग मेंशन देयर. तो मस्ट चेक द सैंक्शन लेटर. अगर आप सैंक्शन लेटर के बिना ऑडिट कर रहे हो, देन इट्स ऑन द मैक्सिमम रिस्क विल बी देयर. देन सेकेंड थिंग, स्टॉक स्टेटमेंट. You must go for the stock statement. Stock statement आप उसको चेक करो, उसको कंपेयर करो. I am telling not only for the concurrent audit, even you can go at the time of statutory branch auditors. आप स्टॉक स्टेटमेंट चेक करो, आप उसको कंपेयर करो फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट क्वार्टर, उसमें मंथली स्टॉक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, दैट यू हैव टू चेक. एंड इवन चेक द डिटेल्स. कई बार आपको ऐसा स्टॉक मिल जाएगा विच आर द ऑब्सोल्यूट स्टॉक, या फ्रॉम लास्ट 6 मंथ सेम स्टॉक्स आर गोइंग ऑन. उसके बेसिस पे कैसे आप बैंक ने फाइनेंस कर दिया, जो आपका स्टॉक सेल ही नहीं हो रहा, दैट यू हैव टू चेक. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉक स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट थिंग इज डीपी कैलकुलेशंस. डीपी कैलकुलेशन में हमेशा इश्यूज आता है. वो कहते नहीं हम क्रेडिटर्स लेस नहीं करेंगे, 90 डेज के डेटर्स लेंगे, एक्सेट्रा. एवरीथिंग इज मेंशन एज पर द सैंक्शन लेटर, आज फॉर द बैंक पॉलिसी. आप आरबीआई का फ्रेमवर्क, आईसीआई गाइडेंस नोट, ऑन दैट बेसिस यू हैव टू चेक द डीपी कैलकुलेशन. मैक्सिमम इशू आपको मिलेंगे डीपी कैलकुलेशन के बेसिस पे. एनपीए को सेव करने के लिए आई हैव सीन मैनी केसेस जिसमें डीपी नोट मैनुअली आप उसमें सिस्टम में चेंज कर देते हैं. इन रिसेंट पीछे हमने एक केस देखा था,
डीपी स्टार्टिंग मंथ में आपकी उनकी 1 करोड़ रुपीज, 15 तारीख को उन्होंने डीपी कर दी जीरो। हाउ इट्स पॉसिबल? हाउ इट्स पॉसिबल? स्टॉक स्टेटमेंट आई नहीं आपके, अपने आप ही कैसे कर रहे हो? फिर 15 दिन बाद फिर चेंज कर दी। So that you have to check DP calculation very clearly. Then next is end use of fund, कि जो फंड आपको किस पर्पस के लिए दिया आपका, उसका एंड यूज क्या है। एक केस में कहीं उसको उसने हाउसिंग लोन लेके उसका जो यूज किया वो बेटे की पीआर के लिए। सो दैट यू हैव टू चेक द एंड यूज, एंड यूज का भी आपको चेक करना है, एंड यूज ऑफ फंड। देन अनदर थिंग इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। उसमें रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शंस क्या है? बिकॉज यू हैव टू गो फॉर द ट्रांजेक्शनल ऑडिट आल्सो। वो आपके लफार में मेंशन है, जो आपके मेजर्स अकाउंट्स हैं उसका आपको लार्ज एडवांसेस है जो आपका, उसका आपको लफार में मेंशन करना है ट्रांजेक्शनल ऑडिट। देन नेक्स्ट इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। आपको चेक करना है बैंक्स ने कहीं एवरग्रीनिंग तो नहीं कर रखी है, उसकी पेमेंट मंगवा ली, सेम डे पेमेंट वापस कर दी। दैट यू हैव टू चेक, वो आपको मेंशन करना है। यू हैव टू यूज योर माइंड। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है, एवरग्रीनिंग के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है उसने। इट्स द ऑडिटर ड्यूटी टू आस्क द मैनेजर की क्या है। और कंकरेंट में तो आपको साथ साथ चेक करना है कि भाई ये तो अभी पेमेंट हुई है, इससे पहले आप देखो ना डिफरेंस कितना है। कई बार तो आपको सेकंड में लगेगा कि आपने पेमेंट करी और साथ साथ विड्रॉ भी कर दी। दैट यू हैव टू चेक। ऑडिट ट्रेल आप चेक करो। ऑडिट ट्रेल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Audit trail will help you a lot, even at the time of concurrent audit and at the time of bank branch statute audit. Then large debit entries, जो लार्ज डेबिट एंट्रीज है, अगर कोई लोन अकाउंट है, आइदर सीसी ओडी अकाउंट्स में जो लार्ज ट्रांसफर है, अमाउंट विड्रॉ है या कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस, दैट यू हैव टू चेक। देन अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। हम कई बार क्या करते हैं, लोन अमाउंट तो चेक कर लेते हैं, बट वी डिडंट चेक जो उसके मोर्गेज या चार्जेस उसको फ्रेम हुए हैं आरओसी की साइड पे या सरसाई की साइड पे। दैट यू हैव टू चेक। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चेक करने हैं ऑन रेगुलर बेसिस। सो दिस इज रिगार्डिंग द लेसन नंबर 2, कि जो एडवांसेस हैं उसकी आपको डिटेल में चेक करनी है। हमेशा इश्यूज आपका एडवांसेस पे आएगा, बिकॉज क्या होता है, फ्रॉड तो हो जाता है आपका, पार्टी पैसा लेके भाग गई। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, इजिली अवेलेबल। वो तो माल्या साहब तो चले गए लंदन में, उनके सीए तो अपने ऑफिस में ही बैठे हैं, कंकरेंट ऑडिटर अपने ऑफिस में बैठे हैं, स्टॉक ऑडिटर अपने ऑफिस में बैठे हैं। सीबीआई को कोई और मिलेगा नहीं मिलेगा, सीए को सबसे पहले पकड़ ले। तो बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो एडवांसेस यू मस्ट चेक, बिकॉज बैंक को अपनी मनी सबसे ज्यादा प्यारी है और इसीलिए हमें ऑडिट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, बाकी स्मॉल डिस्क्रिपेंसी आर देयर कि केवाईसी में थोड़ा इशू आ गया या सेविंग अकाउंट में इशू आ गया, दैट कैन बी ओके, बट इन केस ऑफ एडवांसेस यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। देन नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 3 रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका है। इवन at the time of concurrent branch statutory audit, you have to follow the essays also, standard of auditing। उसमें essay 230 है आपका डॉक्यूमेंटेशन, कि you have to document yourself कि आपने क्या ऑडिट करा है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है। you have to, आपको अपनी फाइल्स you can't share with anyone, वो उसमें स्पेशली मेंशन है, इट्स योर एसेट्स। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे कंप्लीट करने हैं और फाइल्स में रखने हैं, रिकॉर्ड्स रखने हैं, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन से दैट यस these are the correspondence with bank, these account I have checked, these were the irregularity, these were our report। So audit documentation is very very important। this is the lesson number 3, you have to document your work, कि आप उसको एक as a documentation that we must, and that's also required as per SA 230। then lesson number 4, this is very important, never reply on bank explanations। कि बैंक वाला ऑफिसर या मैनेजर जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है,
नेवर रिप्लाई, रिप्लाई नहीं, नेवर रिलाई, मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट ना करो, चाहे बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट हो या बैंक ब्रांच कंकर ऑडिट हो। यू हैव टू चेक यूर सेल्फ। वो तो एक ही आंसर होता है मोस्टली, सर ये तो सीबीएस में है यार, सीबीएस तो ऊपर से होता है। ऊपर कहां से होता है? ऊपर वाला करते हैं क्या आके? कोई तो करता होगा, हेड ऑफिस में, कंट्रोलिंग अथॉरिटी में, रीजनल में कोई तो कर रहा है। सीबीएस में कैसे चेंज कर लेते हैं आप? फॉर एग्जांपल, सीबीएस है क्या? गधा है सीबीएस। अभी एआई कर रहे हैं। एआई को बनाया किसने? हम ही ने तो बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, बट नेचुरल इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस इज द फैक्ट। सेम थिंग विद द सीबीएस। सीबीएस में आपको कैसे चेंज कर देते हैं? आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट है नहीं, बट वहां पे मेंशन है यस, वहां पे यस कर दिया, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड। इन वन केस दे हैव मेंशन अकाउंट इज स्टैंडर्ड, बट स्टॉक स्टेटमेंट उसमें लिखा होता है फैक्ट्री इज क्लोज्ड। देन हाउ इट्स पॉसिबल? then how it's possible? Then as an auditor you have to change your logic. You can't say, मैनेजर तो कहेगा सर ये तो सीबीएस से हुआ है। अरे सीबीएस से कैसे हुआ है? वी हैव टू ऑडिट द सीबीएस। आपको सिस्टम ऑडिट भी तो करना है आपको। यू हैव टू चेक कि ऑनलाइन कैसे इशू करते हैं। तो लेसन नंबर 4, नेवर रिलाई ऑन द बैंक अथॉरिटीज। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, यस प्रूफ, बैंक पॉलिसी है, वो चेक करो आप, बैंक की पॉलिसी, टेक द कॉपी ऑफ द बैंक पॉलिसी। देन लेसन नंबर 5, एंड यस, इसमें भी चेक कर लेना मेकर और चेकर का इश्यू। वो भी अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी उसके ऊपर भी एक रिसेंट केस हुआ था, मेकर चेकर्स के ऊपर भी। देन लेसन नंबर 5, रिपोर्ट द इरेगुलरिटीज इमीडिएटली। तो आपको सिर्फ चेक नहीं करना, अपनी रिपोर्टिंग भी करनी है। ये नहीं कि क्लीन रिपोर्ट दे देनी है। दैट्स द मेजर इशू। कंकरेंट ऑडिट्स में क्या होते हैं बेसिकली, दे आस्क द, हम लोग जो एज ए ऑडिटर हमने भी सरेंडर कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। दे आस्क 20-25 डेज आपके स्टाफ ने आने, 6-7 टाइम्स आपके पार्टनर्स ने आने, देन हाउ इट्स पॉसिबल? अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, आई एम नॉट अवेयर, मैं किसी को क्लेम भी नहीं कर रहा, डिफेम भी नहीं कर रहा, वो मैनेजर से कह देते हैं हमारी अटेंडेंस लगवा देना या 5 मिनट के लिए गए वहां पे हो। नो, तो अगर वो कर रहे हैं तो आप उसकी जो आप रिपोर्ट है, कंकरोडी रिपोर्ट, उसको क्वालिफाई कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट यू हैव टू सेव योर सेल्फ। तो जो भी कोई इरेगुलरिटीज है, मैनेजर तो आपको कहेगा सर इसका तो आ जाएगा, कल आ जाएगा, पर कितना फॉलो करोगे? बट यस, यू हैव टू फॉलो। और अगर कोई स्मॉल इरेगुलरिटीज है, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द मैनेजर इमीडिएटली। आप उसको रिपोर्ट में मेंशन करो दीज आर इरेगुलरिटीज। अब इस केस में क्या हुआ था, इरेगुलरिटीज तो उन्होंने लिख दी और मैनेजर ने अपनी उसमें अपनी रिपोर्ट में लिख दिया साथ के साथ, जो ये आईसीआई डिसिप्लिन केस था, आपसे उसको रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें मेंशन कर दिया ऑडिटर्स ने, यस ऑल जो भी इरेगुलरिटीज है हैज बीन ओके, वो रेगुलर हो गई है इन आवर प्रेजेंस। हुई है नहीं, तो दैट्स आल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड अनदर, ये तो मैं आपको स्मॉल डिस्क्रिपेंसी के ऊपर बता रहा हूं। जो आपकी मेजर डिस्क्रिपेंसी है, तो मेजर डिस्क्रिपेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिपोर्ट, जो भी आपका जोनल ऑफिस है या रीजनल ऑफिस है, वेयर यू हैव टू रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ ब्रांच, एंड देन आल्सो रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस। एंड इन केस देयर आर सम फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस, अगर आपको लगता है फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, तो वहां पे जो एचओ में इंटरनल ऑडिट टीम है उनको आप रिपोर्ट करिए। देन जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उनको रिपोर्ट करिए। मैनेजर को तो आप बताओ अगर मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि एज एन auditor you have to report the irregularities. And next thing is स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो है आपका, बैंक ब्रांच स्टैच्यूटरी ऑडिटर, वो भी आपकी रिपोर्ट को चेक करता है। एंड देन दे हैव टू मेंशन इन द लफार दैट दीज रेगुलरिटीज जो ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन थी कंकर ऑडिटर्स की, वो रिमूव हुई है, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, क्या उसने स्टेप लिया ब्रांच ने, दे हैव टू टेक केयर। सो रिमेंबर दिस थिंग, लेसन 4, जो भी आपकी रेगुलरिटीज है एज ए कंकर ऑडिटर,
you have to report them. And then next, very important, लेसन 6, वो सब कुछ सुनना चाहिए. कंकरेंट ऑडिट बेसिकली कौन करते हैं? या तो आपके न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आर्ट के आर्टिकल्स. इस केस में भी यही हुआ था. द पर्सन जो मैनेजर था, और सॉरी जो पार्टनर था इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक न्यू क्वालिफाइड 2010 में क्वालिफाई किया उसने. विद इन 3 months he become the partner of that firm, senior firm. Person was FCA. Now FCA is saying कि नहीं, ये तो उसने किया, नए अकाउंटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी, मेरे को तो पता ही नहीं है. द अनदर पर्सन इज सेइंग कि वो तो FCA था, उसके भी आप पे तो ऑडिट है, मेरा क्या लेना देना. तो वो इट्स द ब्लेम गेम इज गोइंग ऑन. एंड आईसीआई ने दोनों के ऊपर लगा दिया. बोथ आर गिल्टी, 1 लाख रुपीज पेनल्टी ऑन ईच. सो रिमेंबर दिस थिंग, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द फर्म इटसेल्फ. यू कांट से कि नहीं मैंने तो काम नहीं करा, आर्टिकल्स ने किया. नो, इट्स यूर ड्यूटी. आप जब रिपोर्ट साइन कर रहे हो, दैट यू हैव टू सी, उस पे आपके सिग्नेचर होते हैं. एक और चीज याद रख लेना इस केस में, तभी मैं कह रहा हूं यहाँ पे बड़ा कुछ सीखने को मिला इस केस में. इसमें क्या था? ऑडिट रिपोर्ट, कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, फर्म का नाम, नीचे पार्टनर, ना तो कौन सा पार्टनर है, पार्टनर्स नेम, their membership number, nothing mentioned. That's mandatory. Earlier there was AAS 28, now SA 700. उसके accordingly it's mentioned. वो भी ICI ने टेकन किया. Then next level जो lesson number 7 है, you must go with the RBI guidelines. जो भी है RBI के नोटिफिकेशन, सर्कुलर रिगार्डिंग टू कंकरेंट ऑडिट या द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट, ICI गाइडेंस नोट, ICI AS, ICI एसेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि अर्लियर इट वाज AAS 28, नाउ SA 700 रिगार्डिंग ऑडिटर्स नेम, मेंबरशिप नंबर, किसने साइन किया है, दैट यू हैव टू मेंशन, और गो थ्रू द RBI लेटेस्ट सर्कुलर आल्सो, तब भी ऑडिट करना. अभी लेटेस्ट रिसेंटली विल रिकॉर्ड द वीडियोस, जो बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट्स है, तो विल रिकॉर्ड मैनी वीडियोस. तो एटलीस्ट चेक तो कर लो आप लोग, गो थ्रू इट. यू हैव टू सेव योर सेल्फ. जस्ट रिमेंबर कितनी मेहनत से आपने डिग्री ली थी. आपने ये 20, 30, 40,000 के लिए उसको वेस्ट मत करो. केयरफुली डू दैट. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. मैं उसका भी आपको एक मिनट, यस, लेट मी शो यू दिस वन. सी, हाँ, इट्स विजिबल. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, दिस इज फॉर यू ओनली. ये आपको काफी हद तक सेव करेगा. एंड दिस इज आल्सो मैंडेटरी. SA 580 में जो है ICI की तरफ से रिटन रिप्रेजेंटेशन आपको मैनेजर से, इवन समटाइम दे सेड नहीं हम तो हेड ऑफिस लेवल से प्रोवाइड करेंगे. नो, you should ask the MRL from the bank branch manager even at the time of concurrent audit, even at the time of statutory audit. Statutory audit में आप स्टार्टिंग में मत लो. आप जब रिपोर्ट साइन हो रही हो सारे पेपर्स, तो उसको बोलो ये भी साइन कर दो, कभी मना नहीं करेगा आपको MRL के लिए. हमने हमेशा लिए. अगर आपके पास उसका फॉर्मेट नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू द फॉर्मेट. सी, आप इसकी वर्डिंग्स देखो MRL का स्पेशल जो मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, जो एज ए स्मार्ट CA वो हमेशा आपसे MRL लेगा. जो कैजुअल ऑडिटर है नहीं लेता, फिर इशू आते हैं. तो MRL इज यूर शील्ड. वो आपकी शील्ड है. नहीं लोगे तो फिर इशू विल बी देयर. तो MRL आपको मस्ट एंड मस्ट यू शुड टेक. एंड देन अनदर लेसन, तो MRL का एक ध्यान रख लेना. अनदर लेसन नंबर 9. तो लेसन नंबर 9 क्या है? कई बार हम लोग ये प्ली लेते हैं. एक बार मैं इसको हटा दूं. कई बार हम लोग प्ली लेते हैं कि सर बैंक ब्रांच ऑडिट की फीस तो बहुत कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है. तो दिस इज नॉट द प्ली. यू कांट से कि लो ऑडिट फीस. दिस इज नॉट एन वैलिड एक्सक्यूज. ICI कभी नहीं मानेगा. चाहे फीस आपकी 5,000 रुपीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी 1,000 करोड़ में है, तो भी आप एक्सेप्ट ही ना करो ना.
रिमेंबर दिस थिंग ना, सी कनकर ऑडिट में क्या होता है, दे प्रोवाइड 20 30 40, SBI PNB थोड़ा हाई पेमेंट देते हैं, 50 60 थाउजेंड रुपीज। अदरवाइज बैंक ऑडिट वाले क्या, एक तो PSB वालों ने पूरे साल की हमारी फीस ही नहीं दी, 12,000 रुपीज फीस थी, कोविड के टाइम में ऑडिट किया था, कितनी बार लेटर लिखे हैं, पूरे साल की फीस नहीं दी उन्होंने। उसके ऊपर हमने ICI को भी लिखा, ICI मेंबर्स के ऊपर तो एक्शन ले सकता है, बट बैंक वालों को कुछ नहीं करेगा। वी हैव सेंट द लेटर टू द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कि हमारी फीस ड्यू है, दे ऑल आर मम, नोटिस भी भेजे मम। तो ICI आप मेंबर्स के अगेंस्ट तो एक्शन ले रहे हो, मेंबर्स की जो उनका जो जेन्युइन क्लोज है उसकी भी तो आप कुछ करिए आप उनके लिए। और कनकर ऑडिट की फीस कितनी है, 20,000 25,000 30,000, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब यू कैन से दैट अनलिमिटेड। किसी का भी कोई फ्रॉड हो जाए सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एट लीस्ट ICI शुड डिस्कस विद द RBI, फीस तो रिवाइज कराओ, एट लीस्ट 5 लाख रुपीज शुड बी द फीस। व्हाट दे सेड, एक बंदा तो आपका परमानेंटली यहाँ पे आना चाहिए 20 25 डेज, इतने दिन तो ब्रांच भी नहीं ओपन होती, और आपका पार्टनर 10 to 15 डेज पार्टनर की भी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो 30,000 के लिए आपका एक पार्टनर जाएगा, एक स्टाफ जाएगा। अरे अब तो स्टाइफंड भी 10 15 थाउजेंड रुपीज स्टाइफंड पे कर रहे हैं, आर्टिकल्स ही नहीं मिल रहे। तो माई रिक्वेस्ट टू काउंसिल मेंबर्स, एट लीस्ट रिप्रेजेंट टू द RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि आपने जो हमारे सर पे तलवार लटकाई हुई है तो उसको हम कर तो रहे हैं, ठीक है, कंकरेंट ऑडिट यू सेड इट्स नॉट द रूटीन प्रैक्टिस, यू हैव टू चेक इट, तो हम चेक तो करेंगे, बट एटलीस्ट फीस तो उसकी उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हाउ यू कैन से दैट 15 दिन पार्टनर जाके बैठेगा आपका वहां पे, 20 25 डेज आपका आर्टिकल बैठेगा, तो फीस तो 1 लाख 2 लाख रुपीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स द बिगर इशू। बट यस, लेसन नंबर 9 आप एक्सेप्ट ही ना करो। अगर आपको लगता है हमने सरेंडर कर दिए, कंक्रोडिट आप अप्लाई नहीं करते, तो फीस, लेस फीस इज नोट एंड द सॉलिड एक्सक्यूज। आई कैन नो, आई नो इट वेरी वेल कि आपकी फीस कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। एंड देन नेक्स्ट, लेसन नंबर 10, जो ऑडिटर्स है मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल एजेंसीज। आप ED देख लो, CBI देख लो, इन केस एनी फ्रॉड, कोई फ्रॉड है, इरेगुलरिटीज है, सबसे पहले क्या, माल्या साहब या जो आपके नीरव मोदी या जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब भाग जाएंगे आपके आउट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कौन मिलेगा, CA, उनको पता है कि ये तो अपने ऑफिस में मिलेगा, ये कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले फोकस उनका CAs के भी होता है। तो यू हैव टू टेक केयर योरसेल्फ। अभी CA प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी बोल रहे थे पार्लियामेंट में, कोई मिस्टर विवेक तन्ना थे, तो आई आल्सो स्ट्रोंगली रिकमेंड दैट कि CAs के प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। अरे हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, कोई CA ने थोड़ी आपका वो लोन सैंक्शन किया है। अरे आपका लोन सैंक्शन तो कर रहे हैं जोनल ऑफिस से, हेड ऑफिस से, ठीक है, आई कैन टेल, बट यस आई एम डूइंग, इट्स माय रेगुलेटरीज, वो मैंने जो आपको फॉर्म्स बताए थे आप उसके अकॉर्डिंगली दो। तो पीछे हमारे किसी ने कहा था CA के प्रोटेक्शन के ऊपर ये होगा वो होगा, अभी आई डोंट नो हुआ है या नहीं हुआ। सो इसमें भी सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहले वो पकड़ते हैं स्टॉक ऑडिटर को, अगर उसकी CCOD लिमिट चल रही है कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। एक दो केसेस में तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ED का नोटिस आया, देन दैट पर्सन वेंट टू द ED ऑफिस एंड दे आस्क कि आप ये बताओ आपने जो ये इसका जो आपका स्टॉक ऑडिट किया आपने, हाउ यू चेक, व्हाट्स द प्रूफ यू हैव, देन बाय चांस दैट पर्सन हैव द फोटोग्राफ्स, कैसे DP कैलकुलेट करी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स दे हैव, देन दे सेड ओके यू कैन गो। नेक्स्ट इज कंकरेंट ऑडिटर। आपके कंकरेंट ऑडिटर से पूछेंगे आप रेगुलरली, अगर ब्रांच कंकरेंट ऑडिट हो रही है देन कंकरेंट ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी है। एंड द थर्ड, दे आल्सो आस्क फॉर द बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट। एंड फोर्थ नंबर पे आपका आएगा सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। सो रिमेंबर, एज ए कंकरेंट ऑडिटर, एज ए बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर, you have loads and loads of responsibility, but yes, you have to do your work very carefully. You have all these lessons, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ICI गाइडेंस, whatever I said,
that you have to follow. Then only you can save yourself. Otherwise, either it's a stock audit, either it's a concurrent audit, either it's a bank branch statutory audit. It's very, very risky. So yes, uh, Stella ji, I think I have covered each and everything. I don't want to discuss on that disciplinary case because you can check yourself जो penalty लगी है. But yes, loads of lesson मैंने भी सीखे हैं. In मेरे को लगा कि I should share with you people so that in case of bank branch audit, you should do very carefully and save yourself. Yes, Stella. इसके अलावा कुछ है तो बताओ. Yes, sir. Very wonderful you explained. First of all, thanks a lot to explain very wonderful and easy way, and for your attention also, sir. आपने बहुत ही अच्छे से explain किया है, and hopefully which we have done the discussion right now, it was very much understanding and understanding. And those who are watching us, please, if you guys having any doubts, you guys can comment in our comment section, and definitely we will reply you. Again, sir, thank you Yes. so much. So even I have received many messages regarding कि आपने अभी इस बार वीडियो नहीं बनाया जो CSA का है या फिर जो लास्ट ईयर की ऑडिटेड कौन कौन सी ब्रांचेस किस किस बैंक ने कितनी बेंच ब्रांचेस बनाई. तो वेरी सून माइट बी नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट ऑन दैट. थोड़ा सा आई वाज बिजी बिकॉज यू नो वार की वजह से हमारा बाहर का काम भी सारा रुक गया. सो बट डोंट वरी, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स we'll do on this only on bank branch statutory audit. Till then, bye bye, take care, and once again my sincere thanks to team CS Sansar for giving me opportunity on your platform. Bye bye, take care.